the pharmacists, Me2We Foundation members, office bearers, zone office bearers of Maharashtra State Chemist and Druggist Association, Nagpur zone, and every woman present over here. I welcome you all. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम्। I request all the dignitaries to please join the dais. धन्वंतरी जी का नमन करते हुए हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। आए हुए अतिथियों का स्वागत करना भारतीय परंपरा रही है और हमारी संस्कृति में अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं हमारे एनडीसीडीए के प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र जी कावड़कर से अनुरोध करता हूं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री विराज पौनीकर सर का पौनीकर सर का अभिवादन करेंगे पुष्पगुच्छ देकर। और हेतल भैया से निवेदन करता हूं कि उन्हें सदन से अवगत कराएं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Shri Viraj Pawnikar sir is currently the Joint Commissioner and Controlling Authority of Food and Drug Administration, Maharashtra State, Nagpur Division. His education qualification are his B.Pharm and MBA. His working experience is as an analytical chemist at Drug Control Laboratory, Food and Drug Administration, MS Mumbai. He got the responsibilities of testing of various drugs as the pharmacopoeia and special tests like pyrogen test, LAL test, BET and toxicity test. From 2004 and to 2017, he was the Assistant Commissioner of Drug. After selection through MSPC, he had started his new job as an Assistant Commissioner at Buldana, and after that, Lava worked at Aurangabad, Parbhani and Thane. And from 2017 till date, he is the Joint Commissioner of FDA. He got additional responsibilities to be the licensing authority for drug and cosmetic under Drug and Cosmetic Rule 1945 for manufacturing. He also provided safe, stable and quality medicine and cosmetic to the society by implementing Drugs and Cosmetic Act 1940 with the help of Drug Inspector and Assistant Commissioner. He has also implemented Drug Price Control Order 2013, Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985 and Rule 1985, Drug and Magic Remedies Objectionable Advertisements Act 1954 and Rule 1955. Poisonous Act 1919 and rule thereunter. So I now request everyone to please give a huge round of applause and welcome our today's chief guest, Joint Commissioner FDA, Maharashtra Nagpur Zone, Shri Viraj Pawnikar sir. I request Shri Dhananjay Joshi to please do the floral welcome of MSCDA Vice President Shri Mukundji Dubey.
मीटूई फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री चेतन जी मारवा से मैं निवेदन करता हूं कि आज के हमारे स्पीकर फैकल्टी श्री मोहन जी काले का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करता हूं मीटूई के सेक्रेटरी श्री अरविंद जी अग्रवाल से कि उनका परिचय सदन से करवाएंगे। He was born on 13th May 1970. His education qualifications are LLB, MBA, Diploma in Export Management. He was a medical rep for 3 years and was promoted to supervisor. 7 years he was in sales in Kodak. From there he shifted to business, mainly trading in 1997 and started exports of medicine since 1999. That is 24 years of now. यानी सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं वो. He was self-dependent since he was in 12th standard. He started his business under name of NN Agencies in 1997 and Kale Impacts Private Limited in 2006. Now it is accredited by 6 countries, mainly Pharmacy Checkers, New York since 2008. And CIPA, Canadian International Pharmacy Association, since 2011. He gives end-to-end guidance to exports. He is president of Ocean, Orange City Exporters Association, Nagpur, body formed by Nagpur Pharma Exporters to promote, export and support legal aspect of this business. He coined export module using internet and post. He has taken export to villages. Nowadays, it is common in many parts of country. He supports NGOs operating globally like UNICEF, Women on Web, Aid Access, etc. Now, one interesting thing I want to mention here is he is a farmer, 100% natural farming on 30 acres of land. And he is a collector of antique and old vehicles. Thank you. I welcome Mohan Kale sir with these words. Thank you. Now, I request Paras Mehta sir, Treasurer NDCDA, to give floral welcome and felicitation with a memento as a token of gratitude to Suresh Chari sir and introduction by Hetal sir. कुछ चीज़ें जन्म के साथ मिलती है, कुछ उम्र के साथ और बाकी सब कुछ काबिलियत के साथ. It is a great opportunity for me to introduce our faculty today, Dr. Suresh Chari sir. Dr. Chari is well-known corporate trainer, soft skill trainer and motivator. Being a psychological counselor, he has been actively involved since 1990 in shaping the personality of more than 50,000 youth. Don't wait for things to happen. Make things happen. Be the architect of your own life design is the strong and clear message he sends to the youth in all his training program in small groups of 25 to 30 years of age. Gurukul, a specially designed out of the city 3 days leadership training program piloted by Dr. Chari sir since 25 years, is for young professionals and businessmen, which prepares them to meet the challenges of relationship management and helps them shed egos. Yet another innovative program designed by them is SEED, Skill Enhancement and Emotional Development for school teachers. In all this program, main emphasis is on the need for the adaptability and flexibility in the teaching training style. As a social obligation, he is involved with conducting personality and public speaking programs for blind school children and 10th and 11th standard students coming to the library run by a charitable trust in slums. Since 15 years, he has piloted a 3-month program, Unnati, for 50 selected college students who cannot afford his professional program and are below economic lines. The idea is to make them employable or entrepreneur. He is the founder member of One Foundation, a youth enrichment initiative. Dr. Chari is the most sought after trainer by various MBA, engineer and chartered accountant
colleagues for conducting 7-day self-skill development program, including practical training on group discussion and personal interview. He is the regular faculty at the 1-month General Management and Communication Skill programs for Chartered Accountant organized by ICAI at the Center of Excellence, Hyderabad. He is regularly associated with more than 25 business houses for corporate training on leadership, team building, managing relationships, communication skills, self-concept, public speaking, and presentation skills. Training of Trainers is a 10-day course designed by his team for HR professional, medical engineering, MBA college, and school teachers that Dr. Chari conducts regularly. Since he has been a professor in biochemistry himself with more than 75 scientific publications in various government medical colleges in Maharashtra since last 41 years, he closely appreciates the need for change in the teaching methods. In fact, he has been the recipient of the Best Teacher Award 2 times. Presently, he is working as a Director Research and Medical Education Technology and Professor Biochemistry at NKP Salve Institute of Medical Science, Nagpur, with 75 publications in Index Journal, and is the Famer Fellow International Medical Educator 2-year degree. He has been regularly piloting led faculty the 3 days basic course in education technology, 2 months leadership certificate course for health science teachers communication skill part, and 25. He has been the past president of Rotary Club of Nagpur, Orange City. He is the past vice president Association of Counselor and Psychotherapist, Nagpur. He visited Singapore, Hong Kong, Malaysia in academic assignment, selected to represent India at the 15th Asian Youth Voyage to Japan. Apart from all these things, he, along with his wife Kalpana, who is a school teacher in Bharti Vidya Bhavan, Nagpur, and son Rahul and daughter-in-law Urucha, who are both dentists working in New Zealand. Dr. Suresh Chari is known for his powerful orator and communication skills, his very lucid and easy blend of English and Hindi, and a body language that can be understood and appreciated by everyone. Human and real life examples make him reach out of all. So I request all of you to give a huge round of applause. दोस्तों, अभी तो मैंने आधा ही इंट्रोडक्शन इनका पढ़ा था, कट शॉट किया था, लेकिन समय की मांग को देख के सर की अचीवमेंट इतनी है कि वी ऑलरेडी सैल्यूट टू हिम सर. अब मैं सदन से हमारी आज की तीसरी फैकल्टी का परिचय कराना चाहूँगा. ही इज बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम NIT इलाहाबाद एंड MBA फ्रॉम IIM Bangalore. He has experience of 12 years at IOCL, Aditya Birla Group, and Sun Pharma. He is in Sun Pharma since last 7.5 years, and his designation is Senior GM, Head of India Distribution. His achievements are as he has been selected as a part of Indian Scientific Expedition, which was organized at Turkey in 2006. He set up the first ever hydrogen-powered fuel cell to run telecom towers for Idea Cellular. He was Economic Times Young Leader in the year 2014 and now leading as a distribution head for Sun Pharma in India with a whopping turnover of 12,000 crore. And मैं यहाँ पे विशेष रूप से एक उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे एक अनुरोध पे सर मुंबई से यहाँ तक सिर्फ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए हैं. सर हृदय से अभिनंदन. और वीरभान जी केवल रमानी से अनुरोध करता हूं कि उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे. Now I request President NDCDA Shri Rajendra Ji Kawadkar to please give his opening remarks. नमस्कार. मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे महाराष्ट्र शासन प्रशासनिक अधिकारी सहायुक्त श्री पवनीकर साहब, हमारे महाराष्ट्र राज्य संगठन के उपाध्यक्ष मुकुंद जी दुबे, मंच पर विराजमान महाराष्ट्र शासन के हमारे सहायक आयुक्त नागपुर विभाग के श्री बल्लाड़ साहब, हमारे आज के
इस फार्मेसी डे प्रोग्राम पर खास करके हमें मार्गदर्शन करने आए आचार्य सर, मुंबई से खास हमारे लिए यहाँ पधारे हमारे आग्रह पर, जैसे कि अरविंद ने बताया, श्री सिराज सर। उसी प्रकार हमारे नागपुर के ही श्री काड़े सर, मी टू बी फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री मारवा सर, और उपस्थित इस फार्मेसी फील्ड में जिन लोगों ने उल्लेखनीय योगदान किया, ऐसे कुछ लोगों का हम सत्कार करने जा रहे हैं। ऐसे सभी महानुभाव, हमारे गेस्ट, खासकर इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए IPA के श्री वंजारी साहब, विट्टड़वार सर, हमारे पूर्व सह आयुक्त श्री सेंडे साहब, विट्टलवार सर, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री भागवतकर जी, हमारे भूतपूर्व ट्रेजरर श्री इसके क्या नाम है, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हेतल टक्कर के पिताजी, और हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री दिलीप भाई पारेख, इटनकर साहेब, श्री श्रीकांत जी फुले सर, और मेरे सभी सहकारी पदाधिकारी, मेरे केमिस्ट बंधु, मेरे कार्यकारिणी सदस्य। सर्वप्रथम मैं आपको इस फार्मासिस्ट 25 सितंबर फार्मासिस्ट डे की आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। नागपुर ज़िले में जब से हमारा ये टेन्योर शुरू हुआ, हम लोग कुछ न कुछ प्रशिक्षण प्रोग्राम रेगुलरली, हम लोग कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम हमारे केमिस्ट भाइयों के लिए हम लोग लेते आ रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे संगठन की ओर से हम रेगुलर कई सालों से 25-30 वर्षों से मनाते आ रहे हैं, ताकि हम लोग हमारे व्यवसाय के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय प्रेम भी हमारा बना रहे और हम लोग हमारा राष्ट्रीय योगदान भी हमारे इसमें, हमारे फार्मासिस्ट का उसमें योगदान हमेशा के लिए रहे। आज के इस कार्यक्रम का जो भव्य स्वरूप आपको दिख रहा है, इसके जो जनक है हमारे मार्गदर्शक श्री बल्लाड़ सर, इनकी जो कल्पना है, इनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हो रहा है। इसमें V2Me फाउंडेशन और NDCD ने यह संयुक्त रूप से हमने यह कार्यक्रम लेने का आयोजन किया, जिसका मुख्य श्रेय मैं श्री बल्लाड़ सर को देता हूँ। उन्हीं के मार्गदर्शन में उनकी इच्छा थी कि एक अच्छा हमारे फार्मासिस्ट के लिए प्रोग्राम हमने करना चाहिए। उनके जन्मदिन उनका जो जन्मदिन था, उस अवसर पे यह हम लोगों ने चर्चा किए और चर्चा करने के बाद में यह तय किया कि इस साल का जो 25 सितंबर का प्रोग्राम है, हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और बात सही भी है कि हम जिस प्रोफेशन में काम करते हैं, हमारा प्रोफेशन है, हम फार्मासिस्ट है, जिस व्यवसाय में हम जुड़े हैं, उस दिन को हमने धूमधाम से, और जैसे कि दिवाली हम मनाते हैं उस तरह का हमने इसको आयोजन हमने करना चाहिए। यह उनकी कल्पना हमने सब लोगों ने स्वीकार किए और आज हम यह देख रहे हैं कि हम यह कार्यक्रम जो आप लोगों के सभी के माध्यम से यह सक्सेसफुल होने जा रहा है, ये आपके सहयोग से ही मैं इसका श्रेय सभी आज के जिन लोगों ने, फार्मासिस्ट लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उनको देता हूँ, क्योंकि आपके बगैर यह कार्यक्रम सक्सेस होना असंभव था। इसके बाद मैं जो FIP जो अपने इस्तांबुल में जो तय हुआ था कि 25 सितंबर में यह तय हमारे फार्मासिस्ट डे का उन्होंने तय किया था, इसकी जो थीम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ FIP फार्मास्यूटिकल साइंस, इन्होंने यह हर साल फार्मासिस्ट डे के दिन एक थीम वो देते हैं। इस साल की जो थीम है यूनाइटेड इन एक्शन इन हेल्दियर वर्ल्ड, यह इस बार की थीम है। तो इसका जो मतलब है कि जो फार्मेसी इन्होंने सामने लिखा है कि फार्मेसी से जुड़े हुए सभी लोग, जो चाहे इंडस्ट्रियल में काम करते हो, फार्मेसी मेडिकल शॉप में काम करते हो, या किसी टेक्नीशियन में काम करते हो, MRशिप में काम करते हो, जो भी क्षेत्र में फार्मेसी से जुड़े हुए जो लोग हैं, इन लोगों का योगदान स्वस्थ अपने विश्व को, अपने इंडिया को स्वस्थ रखने में उनका योगदान हम लोगों ने अपने किसी न किसी तरह से आप लोगों ने देना चाहिए। यही ये थीम है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस थीम को ध्यान में रखते हुए अपने समाज को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने में आप भरसक अपना प्रयत्न करोगे। और इसी शब्दों को अपने विराम देते हुए मैं आपको पुनः एक बार फार्मासिस्ट डे की बधाई देकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
मंजिल तक पहुंचने के अरमान बाकी है, धरती नाप ली है, बस ये आसमान बाकी है। मैं निवेदन करता हूं निकुंज जी शाहू से कि हमारे मोटिवेटर मेंटर असिस्टेंट कमिश्नर एफडीए डॉक्टर पुष्पाज बल्लाल सर का भी स्वागत करेंगे। मैं मीटूवी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री चेतन जी मारवा से निवेदन करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यहां रखेंगे। थैंक यू वेरी मच मास्टर ऑफ सेरेमनी अरविंद जी एंड हेतल जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल पवनीकर सर, अदर डिग्निटरीज ऑन द डायस ऑफ द डायस, गैलेक्सी ऑफ डिग्निटरीज आई कैन से, एंड माय डियर फेलो केमिस्ट्स, सबको मेरे तरफ से वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ या मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, आपसे भी यहाँ सुनने आया हूँ, आपकी प्रतिक्रिया जानने आया हूँ। Me2We फाउंडेशन, अरविंद जी ने कहा कि यह प्रोग्राम की परिकल्पना क्या है वो मैं आपको बताऊं। मैं एक लाइन में कहूँगा कि ये जो आज हम सब देख रहे हैं, आप ये समझिए ये हमारा एक सपना था जो आज साकार हुआ। मैं काफ़ी सालों तक, मैं कह सकता हूँ करीब 20 सालों तक NDCDA का मेंबर रह चुका हूँ। अभी मेंबर नहीं हूँ लेकिन हूँ फार्मेसी फील्ड में ही। मेरा लाइसेंस मैंने सरेंडर कर दिया तो उस समय के अध्यक्ष ने मुझे बाहर निकाल दिया कि बोले लाइसेंस नहीं तो सदस्य नहीं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है कि इतनी गैदरिंग, अंडरलाइन के साथ कह रहा हूँ, इतनी गैदरिंग इतनी शांति के साथ तो मैंने NDCDA की एनुअल जनरल मीटिंग में भी नहीं देखी जितनी मैं आज यहाँ देख रहा हूँ। ये सीनियर हमारे सब बैठे हैं, वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। खैर ये कहानी फिर कभी। डियर फ्रेंड्स, ये एक सपना था Me2We फाउंडेशन का कि कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पर हम कुछ अपग्रेडेशन करें। समय बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। समय के साथ अगर हम नहीं बदलेंगे तो समय हमें बदल देगा। Me2We फाउंडेशन, मैं आपको कह सकता हूँ कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह एक सोच है, ये एक आइडियोलॉजी है जहाँ पर हम लोग, अगर मैं कहीं कहूँ कि मैं, तो आप ये समझिएगा हम। Me2We में मैं कोई नहीं है, उसका जो नाम हमने रखा है मी यानी मैं से हम तक, टू वी। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये Me2We या इसका मतलब क्या है। मैं करता हूँ और हम करते हैं, इसका फ़र्क प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों के सामने है। ये परिकल्पना जब हमारे सामने आई तो हमने इस पे प्लान किया, NDCDA ने हाथ बढ़ाया और हम लोग उनके साथ जो कर रहे हैं आप सबके सामने है वो। हम लोग जनरली हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, इन्वायरमेंट, लिटरेसी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस पर बहुत काम करते हैं। हमारे नागपुर और विदर्भ के नहीं, मैं देश की भी अगर बात करूं तो चारी सर जो स्किल डेवलपमेंट में बहुत अच्छे एक जाने माने नाम है, वो शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे। लोगों को लगता है कि ओरेटरी जो है वो एक स्किल है, मुझे लगता है ये स्किल नहीं है। ये हम लोगों ने उसको स्किल मान के छोड़ा हुआ है। इट शुड बी द नेसेसिटी। जब तक आपको बोलना नहीं आएगा, अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आएगा, आप लोगों को बताएंगे कैसे कि आप चाहते क्या हैं। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है Me2We फाउंडेशन, वो इस प्रकार के सभी लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए ओपन है कि वे सामने आए। इस प्रकार से ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा है। बहुत सिंपल, हम सब लोग हेल्थ से जुड़े हुए हैं। कावड़कर जी ने जैसे कहा कि हेल्थ से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, वो भले ही रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, वॉटेवर, हम लोग किस में डील करते हैं? बीमारियों पर, दवाइयों पे, बीमारियों के लिए। इलनेस, ILLNESS, आई यानी मी, आई को हटाइए, वहाँ पे वी करिए, इट कन्वर्ट्स इनटू वेलनेस। ये ध्यान रखिए कि हम उस इलनेस को अगर हटाना चाहते हैं तो हमें संगठित होना, एक साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको अत्यंत हर्ष के साथ ये बात यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर प्रकार के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आइडियोलॉजी सबकी एक है, एकेडमिशियंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, अदर देन फार्मेसी फील्ड्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सारे हैं। लेकिन ये सारी डेजिग्नेशंस उनके अपने रिस्पेक्टिव ऑफिस और वर्क प्लेस में है। जब वे प्लेटफॉर्म पे या ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो वहाँ पर हम वी हैं और हम इस प्रकार के प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, सब लोगों को अपने साथ जोड़ के एग्जीक्यूट करते हैं। और मैं यानी वी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये यहाँ बताना चाहेगी
कि आज ये जो फॉर्मेकॉन 2022 हमने एनडीसीडीए के साथ लिया है, हम चाहेंगे कि मी टू वी के तरफ से हम सब चाहेंगे कि फार्माकॉन 2023 एनडीसीडीए इतनी सक्षम हो जाए, है भी और हो भी जाए कि नया प्रोग्राम 2023 का फार्माकॉन 2023 ऑनवर्ड्स हम चाहेंगे कि एनडीसीडीए ये प्रोग्राम करे। हमें फ़क्र होगा कि हमारे साथ में चलने वाली जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एनडीसीडीए, इतने अच्छे प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए यहाँ ला रही है। समय की सीमा को देखते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद। इतने लोग जो आप यहाँ पर आए हैं, आपने अभी तक के 5-6 बार तालियां बजाई, कभी ऑर्गेनाइज़र के लिए, कभी हमारे बहुत अच्छे स्पीकर्स के लिए। मैं चाहता हूँ आप एक बार अपने लिए तालियां बजाएं जो आप यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सुंदर स्वरूप में आज का ऑब्जेक्टिव हमारे सामने रखा। निश्चय ही हम आपकी भावनाओं को अमल में लाते हुए आगे ये सारी चीज़ें करेंगे और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि उस पर हम खरे उतरेंगे। फ्रेंड्स, हमारे समक्ष कई गेस्ट है जिनका फेलिसिटेशन होने वाला है और कुछ इनवाइटेड गेस्ट भी यहाँ उपस्थित है जिनका हम छोटा सा यहाँ पे रिकॉग्निशन करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे बीच यहाँ श्रीकांत जी फुले उपस्थित है। मैं उनकी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करता हूँ। मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ हमारे नांदेकर सर का। आई रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ शरद नांदेकर सर। I recognize the presence of Dr. Dilip Parekh sir. I recognize the presence of our past President Mahendraji Bhagwatkar sir. I recognize the presence of Shri Naresh Gaikwad sir. I recognize the presence of Vanjari sir. I recognize the presence of Dr. Abhay Ittadwar sir. I recognize the presence of Prakash Shende sir. I recognize the presence of Nitin Bhandarkar sir. Backside there is Monica madam. I recognize her presence also. Now I request MSCDA Vice President Shri Mukundji Dubey to kindly address the gathering. भगवान धन्वंतरी को हम सभी की ओर से, व्यासपीठ पर बैठे हमारे सभी गुरुवर्य, मेरे सभी ज्येष्ठों की ओर से और उपस्थित सभी फार्मासिस्ट की ओर से नमन करते हैं। आज का ये दिन 25 सितंबर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में नागपुर की इस सरजमी पर हम लोग यहाँ पर मना रहे। और सबसे अच्छी बात कि मीट हुई इनकी सोच को साकार करने का कार्य मेरे एनडीसीडीए के सभी फार्मासिस्ट और केमिस्ट बंधुओं ने किया। इसलिए एक बार आप सभी लोगों का तहे दिल से एक संगठन का कार्यकर्ता के नाते मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। व्यासपीठ पर ज्येष्ठ डॉक्टर सुरेश चारी सर, विराज पवनीकर सर, जिनकी सोच पर हम लोग उतरने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर पुष्पाश बल्लाड़ सर, सिंह साहब, चेतन मारवा साहब, काड़े साहब, नागपुर जिला संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र जी कावड़कर, उपस्थित यहाँ पर मेरे सामने बैठे मेरे ज्येष्ठ गुरुवर्य डॉक्टर नरेश जी गायकवाड़ सर, डॉक्टर अभय इट्टड़वार सर, इटनकर जी, हर्षद भाई ठक्कर, नांदेकर सर, दिलीप भाई पारिक, महेंद्र भाऊ भागवतकर, राजेंद्र जी दिवे सर, शेंडे सर, उपस्थित हमारे भांडारकर सर और सभी यहाँ पर उपस्थित औषध निरीक्षक क्षीरसागर जी, और इतने अच्छे माहौल में जो चेतन जी ने बोला कि इतने अच्छे माहौल में जो एनडीसीडी की एजीएम में भी हम लोगों ने यहाँ पर नहीं देखा, वो इतना शांत सरल तरीके से बैठा हुआ। यहाँ पर हम एक एक जो बैठा है मेरा फार्मासिस्ट, आप सभी को एक संगठन का कार्यकर्ता के नाते आपको तहे दिल से
वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि हम लोग निश्चित तौर पर इस फार्मासिस्ट का जो दर्जा है उसको बढ़ाने का अपन लोग प्रयास करेंगे और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मुझे लगता है। एक अच्छी सोच, जैसा मारवा जी ने बोला कि मी टू वी फाउंडेशन, ये एक अच्छी सोच है, एक संकल्पना है और इस संकल्पना को साकार करने के लिए आपको एनडीसीडीए ने सहयोगी के रूप में हमारे साथ में आप लोगों के साथ में ये भूमिका निभाई है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जिस प्रकार से, जिस सोच के अनुरूप, क्योंकि हर साल हम लोग देखते आए पिछले कई सालों से कि हम लोग मतलब जो है कि हमारी सिर्फ एकता की भूमिका निभाते हुए हम पिछले 5-7 साल से हम लोग जो फार्मासिस्ट डे मनाते आ रहे हैं, लेकिन एक नई सोच के रूप में यहाँ पर आप लोगों ने एक बहुत अच्छा जो यहाँ पर एजुकेशन के रूप में यहाँ पर अपने फैकल्टीज़ को लाके हमारे फार्मासिस्ट लोगों का जो अपग्रेडेशन करने का जो प्रयास किया, उसके लिए संगठन का कार्यकर्ता के नाते मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं ज़्यादा शब्द नहीं बोलते हुए फिर से आप लोगों को और ऑर्गेनाइज़र के रूप में जितने भी हमारे सब लोगों ने काम किया उन सारे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हम जिन्हें इतनी बड़ी संख्या में सुनने के लिए लालायित हैं, ऐसे हमारे आज के चीफ गेस्ट, उन्हें मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। नमस्कार मित्रांनो, उपस्थित आदरणीय व्यासपीठ, आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले श्री मोहन काळे सर, श्री चेतन मारवा सर, वाइस प्रेसिडेंट श्री मुकुंद बेजी, फैकल्टी श्री सुरेश चारी सर, श्री पारस मेहता जी, उपस्थित श्री बल्लाल सर, आजचे एनडीसीडीचे अध्यक्ष श्री राजेंद्र काकडकर सर, उपस्थित सर्व फार्मासिस्ट, माझे कलीग श्री शेंडे सर, उपस्थित नांदेकर सर, प्रशांत, मोनिका मॅडम, महेश गाडेकर साहेब, मनीष भांडारकर साहेब, हा जो कार्यक्रम आजचा आहे ज्यांच्या सहकार्याने होत आहे ते एनडीसीडीएचे सर्व कार्यकारी, मी टू बी फाउंडेशन, ह्या सगळ्यांना माझा नमस्कार। आपणाला सगळ्यांना माहीतच आहे की 25 सप्टेंबर म्हटलं की हा जागतिक फार्मासिस्ट दिन म्हणून आपण साजरा करत असतो। दरवर्षी हा जागतिक पातळीवर हा मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो। भारतात आता तो त्या पद्धतीने 8-10 वर्षापासून चांगल्या पद्धतीने व्हायला लागला आहे, कारण आपण बाकी देशांच्या तुलनेत खूप खाली आहोत फार्मासिस्ट म्हणून। त्याचा उद्देशच आहे की जेव्हा देशाला, जगाला कळलं की फार्मासिस्टचं योगदान काय आहे ह्या जगात, तर ते अतुलनीय आहे। परंतु त्या कामाचं कोणी महत्त्व समजून घेतलं नाही आजपर्यंत। जेव्हा हे कोविड आलं आणि आपलं महत्त्व काय हे समजलं, तेव्हा कुठेतरी फार्मासिस्टला आणखी वाव यायला लागला, कारण त्यामागे आपली मेहनत आहे, आपलं समाजाला दिलेलं योगदान आहे।
दरवर्षी फार्मासिस्ट डेला, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जेव्हा होतो तेव्हा काहीतरी एक वेगळी थीम असते. यावर्षीसुद्धा त्यांनी जी थीम दिली की फार्मसी युनायटेड इन ॲक्शन फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड, अशी दरवर्षी एक नवीन थीम जागतिक लेवलवर होत असते आणि ती संपूर्ण जगात एकसारखी होत असते. आपल्याला फार अभिमानाची गोष्ट आहे की हा एक दिवस आपल्यासाठी एक फार्मासिस्ट म्हणून सगळ्यांसाठी आहे, राखीव आहे. जगात आपण फार्मसीमध्ये खूप समोर गेलेलो आहे. आपलं महत्त्व हे सगळ्या जगाला कळलेलं आहे. फार्मसी म्हणजे काही हे नाही. फार्मसी आणि या फार्मासिस्ट याचा खूप मोठा संबंध आहे. फार्मासिस्ट म्हणजे आम्ही सर्वच आहोत. त्यात फार्मसीमध्ये येणारा सगळा जो मोठा व्याप आहे, ज्यामध्ये आपण सुरुवातीपासून जर घेतलं शिक्षणापासून, एक बी फॉर्म व्यक्ती, एक डी फॉर्म व्यक्ती, हे झालं आपले बेसिक क्वालिफिकेशन, ज्यातून आपण रजिस्ट्रेशन करून मग फार्मासिस्ट झालो. त्यानंतर आपण समाजाला आपलं देणं सुरू करतो. त्यामध्ये मग कोणी R&D सेक्टरला जातो, कोणी आपलं मेडिकल शॉप उघडतो, कोणी लेक्चरर होतो, कोणी रेग्युलेटरीज गव्हर्मेंट जॉबमध्ये लागतात. आणि हा व्याप हा वाढतच जातो. म्हणजे ही जी चेन तयार होते मॅन्युफॅक्चरिंगपासून तर त्याची सेलिंगपर्यंत, आणि त्याला टेस्टिंग करणारे, त्याला नियंत्रण करणारे, हे सगळे फार्मासिस्ट आहेत. हा फार्मसीमधला हा सगळा मोठा परिवार आहे. फार्मसी एक परिवार झाला, त्यातले सगळे सदस्य आहेत. कोणीही हा वेगळा नाही आहे. मी इथे जरी जॉईंट कमिशनरच्या याच्याने असलो तरी मी हा फार्मासिस्टच आहे. मी काही मोठा नाही. यात उद्योजक आहे, क्षीरसागर साहेबांसारखी. आपल्या विदर्भात असलेलं एक चांगलं युनिट जेनटेकचं ते चालवतात. खूप जुने संबंध माझे. एक इंजेक्टेबल प्लांट उभारणं, त्याला चांगल्या पद्धतीने करणं खूप अभिमानाची गोष्ट आहे आपल्या एका फार्मासिस्टसाठी. उपस्थित असलेले इतळार सर, हे पण मी लहानपणापासून ते मला बघत आलेले आहेत. आणि त्यांनी पण त्यांच्या त्या अकॅडमिक्स याच्यामध्ये एवढं मोठं काम केलेलं आहे. अफाट शिक्षण आहे त्यांचं. आमचे गुरुतुल्य आहेत. सगळे आपल्या आपल्या परीने समाजाला काहीतरी देत आहे. आपण फार्मासिस्ट आहे, एक दुकानात आहे म्हणून आम्ही छोटे नाही, हे समजून घ्या सगळ्यांनी. आम्ही छोटे अजिबात नाही. आम्ही रोज रुग्णांसाठी काही ना काही देत असतो, आपला मोबदला देत असतो, समाजाला काहीतरी आपलं योगदान देत असतो. परंतु काय झालं की बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत गेला. म्हणजे जेव्हा आम्ही फार्मसी करत होतो, शिकत होतो, तेव्हा लोकांचा दृष्टिकोन एक कंपाऊंडर म्हणून होता. म्हणजे एक कंपाऊंडर का कोर्स आहे क्या? म्हणजे इथून सुरुवात होती त्याला. कोणीतरी म्हणायचं की नाही अभी वो मेडिकल में मिला नहीं ना तो इसलिए फार्मसी में आ गया. म्हणजे असा दृष्टिकोन. म्हणजे आता स्वेच्छेनं मला खूप कमी बोलताना दिसलं की बाबा नाही नाही फार्मसीमध्ये मला हे करायचं आहे किंवा मला फार मोठा उद्योजक व्हायचा आहे, असं कोणी बोलताना मला तरी आठवत नाही. आता हे 10 वर्षात परिस्थिती खूप बदलली आहे. कोविड नंतर तर लोकांना असं वाटलं की बहुत बढिया काम आहे. असं लोकांचं म्हणजे बघा तो दृष्टिकोन कसा बदलत चालला. आता तो का बदलता आणि का बोलला तो वेगळा विषय आहे. परंतु सुरुवातीला हा दृष्टिकोन नव्हताच. तो दृष्टिकोन जेव्हा सुरुवातीला असला असता तर अजून भारताची परिस्थिती अजून काही वेगळी असली असती. मी चुकीने गेलो नाही बरं का. मला इंजिनिअरिंगला मागे लागले होते, BE करून टाक, BE करून टाक, पण म्हटलं मी नाही करणार, कारण मॅथ्स तसंही बेकार होतं. त्यामध्ये आपल्या कामाचं नव्हतं. त्यामुळे म्हटलं नाही आपल्याला मग B.Pharm करू आपण. आणि जे काही झालं त्यात मनापासून केलं सगळं. मग असं करत समोर गेलो आपण सगळे फार्मासिस्ट. तुम्ही त्यातले सगळ्यांनी कुठेतरी फार्मासिस्ट केलं, कोणी डिस्ट्रीब्युटरशिप घेतली, कोणी रिटेलमध्ये. सगळ्यांनी चांगलं. बघा मला सांगा कोणतरी वाईट आहे का यात? सगळे खुश आहेत की नाही? सगळ्यांनी चांगले फॅमिली, मुलं सगळे. कारण आपण मुळातच शिकले सवरले आहो, हे लक्षात ठेवा.
आपण एवढं गाईड करतो, पेशंटला काउन्सिलिंग करतो, त्या MR ला काउन्सिलिंग करतो, सगळ्याला धोपटून टाकतो हप्त्यात, आहे की नाही? मग आपल्यापेक्षा काउन्सिलर चांगला कोणी आहे का? कोणीच नाही आहे. आपल्यापेक्षा चांगला काउन्सिलर कोणी नाही आहे, लक्षात ठेवा. परंतु जेव्हा बिझनेस माइंडेड होतं तेव्हा मग कुठेतरी आपण कमी पडतो. आता मी तर आता हे फार्मॅकॉन आजचं जी थीम आहे त्याला एक फार्मॅकॉन म्हणून एक चांगलं नाव दिलेलं आहे आपल्या लोकांनी, आयोजकांनी. खरोखर अतिउत्तम नाव आहे. का नाव आहे की फार्मॅकॉन ही असं दर्शवते की बाबा हे औषध आणि विष. फार्मॅकॉनचा अर्थ आहे बरं का, यांनी काहीतरी लिहिलं नाही, खूप अभ्यास केला आहे. ज्यांनी जे काही आयोजक असतील त्यांनी याच्यामागे भरपूर अभ्यास केला दिसला. कारण त्याचा अर्थच असा आहे की औषध आणि आपण त्याच्याशी जुळलेलो आहोत, औषधांशी. विषशी पण जुळलेलंच आहोत. विष, पॉयझन इज ऑल्सो मेडिसिन. जास्त प्रमाणात झालं तर मग गेला समजा तो, परंतु एका प्रमाणात आपलं औषध हे चांगलंच आहे. आता औषध व विष काय? कारण बघा, औषध जे आहे एका योग्य प्रमाणात आपल्या रजिस्टर फार्मसीने चांगल्या पद्धतीने जर दिलं, डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर दिलं, तर ते खरोखर संजीवनीचं काम करेल. आपण उलटसुलट काहीतरी दिलं, मनाने दिलं किंवा एखाद्या बोगस डॉक्टरने दिलं, कोणत्या तरी डॉक्टरने दिलं, त्याला याची काही परवानगीच नाही, तर मला सांगा ते कुठेतरी हानी करेल की नाही? करेल. आपण तरी फार्मॅकोलॉजी काही प्रमाणात शिकलोय, काहीतरी आपल्याला फार्मास्युटिक सब्जेक्ट आहे, काहीतरी आपल्याला चांगलं ज्ञान आहे ना त्या औषधांचं, काहीतरी कोणतं ॲटलिस्ट जनरिक माहीत आहे आपल्याला की हे औषध याच्यावर काम करतं. म्हणजे बेसिक आपलं पक्का आहे, एवढं काही वाईट नाही. आपण वेळेवर कोणाला चांगलं औषध देऊ शकतो, त्याचं प्राण वाचू शकतो, नक्कीच वाचू शकतो. कारण डॉक्टर येईल, डॉक्टरपर्यंत पोहोचेपर्यंत आपल्याला तो पेशंट तक धरून राहायला पाहिजे की नाही? तर तेवढं आपण काम खरोखर चांगलंच करू शकतो. परंतु काही केसेस अशा झाल्या की लोकांनी चुकीची औषधं देणं, आपल्या लोकांनी नाही दिले, कारण मालक कुठेतरी दुसऱ्या कामात बिझी असतात आणि दुकानात कोणी वेगळं असतं, तेव्हा ह्या गोष्टी होतात. ज्यांच्या दुकानात फार्मासिस्ट आहे त्यांच्या दुकानात त्या गोष्टी क्वचितच घडलेल्या आहेत. ते फार्मासिस्ट कोणी असो, तुम्ही घरचा असू द्या, बाहेरचा एम्प्लॉई ठेवा, परंतु फार्मासिस्ट असल्याशिवाय दुकान चालूच नका. माझं तर साफ मत आहे. कारण ते कधीतरी अंगलट येतं. मालक म्हणून आपण जरी वेळ नसला, 10 कामात बिझी असला पण फिरत असतो, परंतु जे काम फार्मासिस्ट करतो, आपण मालकाने किती मोठं असेल बघा, प्रत्येकाची ऐपत नाही दुकान उघडायची. कोणतरी डिफॉर्म करतो, त्याला 15-20 हजाराची गरज असते, पण खूप मेहनती असतात लोक. आणि दुकान पूर्ण 12 तास 13 तास एकटे दुकान सांभाळतात. 80% उदाहरणं आहेत अशी. मालक आपला 1ची 2, 2ची 4 करण्यात बिझी असतो बिचारा, तो पसरत असतो आपला व्याप. परंतु तो एक डोकं लावतो, त्याला माहीत आहे की डोक्याला ताण नाही, तो वेळ देऊ शकत नाही, तो तिथे एम्प्लॉई फार्मसिस्ट ठेवतो, पगार देतो, आणि ते कुशल मॅनेजमेंट आहे असं मी समजतो. कारण माहीत आहे का, एखाद्याचा जीव गेला तर तो मालक पहिले फसतो, दुसरा फार्मासिस्ट येतो, आणि तिसरा जो थर्ड व्यक्ती आहे ज्याने दिलेला आहे तो बिचारा काहीतरी शिकलेला असतो, अनुभव चांगला असतो त्याला, तो मेहनती असतो, पण कधीतरी छोटं नाव, कमी जास्त स्पेलिंग, चुकीचं औषध जातं, आणि तिथे हा धोका होतो. आपली इच्छा नसताना, आपल्या मनात नसताना आपण बदनाम होतो. एका 2-4 केसेसमुळे पूर्ण महाराष्ट्रात बदनामी होते. एकाची होत नाही, पूर्ण फार्मासिस्टची होते की दुकानं असे चालतात, काही देतात. मग हा भाग कधी येऊ नये. आता बरेचदा असं दिसतं की आपण किती फार्मसी केलेलं आहे, आपल्याला काउन्सिलिंग माहीत आहे, आपण किती लोकांना, पेशंटला काउन्सिलिंग करतो, काहीच करत नाही. खूप कमी लोक आहेत जे पेशंटला 2 मिनिटे चांगल्याने वेळ देत असतील. जिथे गर्दी असते तिथे तर सोडून द्या, म्हणजे त्यांना बघायला वेळ नाही, 2-3-3, 4-4 माणसं असतात. पण बघा, हा वेळ अशी बदलत जात असते. हळूहळू तुमच्या याच्यात कधी ऑनलाईन शिरलं आहे तुम्हाला माहीत झालं नाही, आणि त्याचा परिणाम आता बिझनेसवर व्हायला लागला. एकीकडे आपलं पेशंटशी वागणं खूप लिमिटेड, जुने लोक खूप चांगले, अगदी जुने लोक आहेत ना बघा, त्यांचं एवढं चांगलं लोकांशी असतं, एवढं चांगले बोलतात, आणि कुठेतरी तो व्यक्ती आहे, तो फॅमिलीची फॅमिली तिथे जुळलेली असते, ते दुसऱ्या फार्मसीमध्ये सुद्धा जात नाही. जो त्यांना वाटलं की नाही वही से लाने का उसी दुकान से, मुलाला सांगणार, सुनबाईला सांगणार, त्याचं जाणं झालं तर कुणाला तरी पाठवणार.
कारण त्याचा विश्वास जो असतो ना तो फार मोलाचा आहे. त्याला फोन जरी केला तरी तो घरी पोहोचून देतो. एवढं क्लोज रिलेशन असते. तो दुसरीकडे जात नाही. परंतु आपण प्रॉपर काउन्सिलिंगच केलं नाही आजपर्यंत कोणाला, त्यामुळे तो तुम्ही तुमच्या ग्राहकाला जोडूच शकले नाही. ऑनलाईन शिरल्यानंतर मला काय घेणं देणं आहे तुमच्याशी? तुम्ही कधी संबंधच जोडले नाही ना, तुम्ही प्रेमाचे संबंधच जोडले नाही. मग तो ऑनलाईनला 40% 30% काहीतरी आपलं डिस्काउंटचं क्लेम करतो आणि मागवत होतो तिकडनं. त्याला वाटतं की 40% वाचले. आता त्याला बाकीच्या गोष्टी कळायला खूप वेळ लागते की याच्यामध्ये गुणवत्ता कमी जास्त, चुकीचं औषध, मग औषध आलं तर परत घेत नाही, ह्या गोष्टी त्यांना नंतर कळतात. परंतु सुरुवातीला त्याला काहीच नसतं. परंतु ज्यांनी चांगले बरेचसे असे लोक आहेत ज्यांचे लोक आजही जुळलेले आहेत, त्यांना ऑनलाईनचा एवढा काही फटका बसलेला नाही. कारण त्यांना माहीत आहे ही लोक जे आहेत त्यांचे फिक्स आहेत. ते येतात 10 लोकांना सांगतात, माउथ पब्लिसिटी. कारण तुमचा व्यवहार, तुमचं बोलणं, तुमचं प्रेमाने डिस्काउंट देऊन देणं, चला काका 10% काट दिया मैंने तुम्हारे लिए. पण हा खूप क्वचित आहे. मी स्वतः बघितलेला आहे. मी पण फार्मसी फिरलेलो आहे. म्हणजे एक किस्सा तसा सांगतो. मी फार्मसी बाहेर उभा होता, मला म्हणते तुमको क्या चाहिए. अरे बापरे म्हटलं, आता अरे हा व्यवहार आहे आपल्या लोकांचा. आपको क्या चाहिए, बाजू जाओ. अरे बापरे, चलो भाई थोड़ा देर खड़ा रहता हूँ मैं. और मैं 15 मिनट खड़ा रहा मस्त, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, दनादन चल रहा है सब कार्यक्रम. वो फिर थोड़ा गटपटा गया, 10 मिनट से सब साहब देख रहे कुछ तो गड़बड़ है बोले. अभी उनको मालूम ही नहीं हम साहब है करके. तो बोला भैया अभी माफ़ करो, अभी रोक दे बोला तो साहब, अब मेरे को थोड़ा इंस्पेक्शन करने दे भैया. बोला ये तुम बिंदास देख रहे हो, तुमको बोला मैं सूट बूट में हूँ, तुमको इतना भी नहीं समझता कि भाई ये कोई पढ़े लिखे होंगे तो थोड़ा अच्छा बर्ताव करना चाहिए. गांव खेड़े के लोग तो समझ जाते, वो बेचारे मजबूर रहते, वो बस ठीक है. वो आप गांव खेड़े में जाएंगे तो परिस्थिति देखो. अपने शहर में तो भी बहुत से अच्छे सूट बूट में लोग मिलते हैं. पर यही गलत है. ये वहाँ मुझे ऐसा लगा कि कितना अपना इतना सीखे पड़े लोग, इतने अच्छे फार्मासिस्ट का दर्जा, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हम मनाते, लेकिन सोच हमारे से स्टार्ट ऐसी होती है कि कुछ भी नहीं है, कहीं तो गलत हो रहा है. कि भाई हमारे व्यवहार में बदल लाने की ज़रूरत है. कि देखो पेशेंट तो दुनिया का सबसे दुखी आदमी है, इतना समझ लो. उससे दुखी कोई भी नहीं है दुनिया में. वो पेशेंट कोई भी रह सकता है, तुम रह सकते, हम रह सकते, हमारे घर वाले रह सकते, कोई भी रह सकता है. पर उसको देखने का दृष्टिकोण हमारा है ही नहीं. तो हम काउंसलिंग करेंगे कहाँ से? और काउंसलिंग नहीं की तो जुड़ेगा कहाँ से? जुड़ेगा नहीं तो ऑनलाइन के पीछे उसका लड़का भगाएगा, वो भागेगा. अदरवाइज आज भी वो कुछ लोग ऐसे हैं कि बच्चे को बोलते, बच्चे बहुत होशियार है, अरे पापा इधर 60% मिल रहा है ना, मैं अब भी मंगा देता हूँ. बहुत होशियार है, कंप्यूटर युग आ गया पूरा. वो बोलता है वहाँ से लाने का नहीं बेटा, वो तू मंगा तेरे लिए, मेरी दवाई तो ये फार्मेसी से ही आएंगी. उसका रीज़न है विश्वास, उस आदमी से जुड़े हुए उसके संबंध. मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो ऑनलाइन तुमको खा जाएगा एक दिन. ऑनलाइन जाएगा ना, जिस दिन आ जाएगा हम क्या करेंगे बताओ? आज हम कितना भी चिल्ला रहे, लेकिन तुम्हारे और मेरे हाथ में कुछ नहीं है. हमने बहुत विरोध किया, सेंट्रल को लिखे हमारे प्रशासन ने कि इससे क्या नुकसान क्या है, उनका नुकसान क्या है, इससे क्या हो सकता है. नार्कोटिक्स ड्रग्स है, अल्पराजोलम जैसे ड्रग्स है, MTP किट्स है, मिसयूज होती है, तो इसको नहीं देना चाहिए. इसके तो अगेंस्ट में हम महाराष्ट्र पहले से ही है. लेकिन कैसा है, सेंट्रल में जो पॉलिसी होती है अब वो हमारे सामने तो बनती नहीं, ना ही हम वो सैंक्शन करने वाले और रोकने वाले. ये आज नहीं कल आएगी. अब इतने बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व है, कब तो कुछ तो होगा उसमें. तो इसका फटका सीधा बैठेगा, बिल्कुल बैठने वाला है. क्योंकि जो चौक में दुकान है वो क्यों है कि वो 100 लोग आते हैं, इधर से बस स्टैंड है, उधर से रेलवे स्टेशन है, तो इधर से लोग मिलते हैं, इधर चौक है, तो वहाँ हमारी दुकान चलती है. क्योंकि लोग चल के आते हैं तुम्हारे पास, वहाँ उतरते हैं तो आगे दुकान दिखती है या फिर तो आता है. जब फार्मेसी जब ये ऑनलाइन लीगल हो जाएगा तो क्या जरूरत है? मैं घर बैठी बिठा सकता हूँ ना, घर बैठी बुलाऊंगा, क्यों दुकान में जाऊंगा? वो कहीं से भी आएगी, कहीं से भी आएगी. और ये समय तो बदलेगा ही, तो बदल रहा है. ऑनलाइन का चालू है, 2-3 साल से रुका हुआ है. अब हो क्या गया कि कोविड में ऑनलाइन में थोड़ी बहुत घर पहुंचाने की सुविधा मिल गई तो लोगों को लगा ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तब कोई बाहर आता नहीं था, किसी को परमिशन नहीं थी. अभी वो ड्राफ्ट अभी भी नहीं हुआ है, ड्राफ्ट में अभी भी पेंडिंग है, लेकिन आज निकल होगा. क्योंकि वो उसको उन्होंने बोला कि सब कुछ जब ऑनलाइन आता है तो इसको कंट्रोल करेंगे, इसको एक्ट बनाएंगे और इसको आगे करेंगे. तो अब उसके लिए हमको तैयार रहने की ज़रूरत है.
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। व्यवहार बदलो, अपने लोगों से अच्छा बर्ताव करो। जो आज दवा लेने आए वो आज नहीं कल अपने पास आना चाहिए, ये व्यवहार रखो, तो अपनी कुछ तो सुधारना उसमें होने वाले। नहीं तो क्या होगा कि वो अभी ऐसा हो रहा है कि यहाँ से दवा डालता कोई, कहीं से बोगस प्रिस्क्रिप्शन लाया क्या, या किसी डॉक्टर का डाल दिया कि वो कहीं तो जाता है, अदर स्टेट का डॉक्टर रहता है, मेडिसिन किसी और स्टेट से आती है। महाराष्ट्र का कस्टमर है, पेशेंट महाराष्ट्र का है, उसको महाराष्ट्र की किसी भी ऑनलाइन मेडिकल शॉप से आ नहीं रहा। अब हमने इतने ट्राई किए, जब कंप्लेंट आई तो हमने इतनी सारे किए, FIR डाले, लेकिन कुछ ऐसा इफेक्टिव कुछ नहीं, क्योंकि पूरा उसके लिए पूरा इंडिया करेगा तो होगा ना, महाराष्ट्र करने से क्या होगा अकेला, ये पूरा इंडिया में चल रहा है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा केसेस अपने महाराष्ट्र में हुई। अपन नागपुर में भी किए, उधर ठाणा किए, बॉम्बे किए, बहुत केसेस किए, अपनी तरफ से चालू है जो काम करना है। लेकिन हर कोई महाराष्ट्र थोड़ी करेगा सब कुछ, क्या क्या करेगा। तो ये जब भी आएगा, लेकिन अपना बर्ताव थोड़ा सा, बस मेरा तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आदेश नहीं कर रहा हूँ किसी को, तो सबके मन के मालिक हो तुम लोग। आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपना रवैया बदलो, रवैया बदलो, सब बदलेगा। कुछ नहीं होता ऑनलाइन से। अभी भी अमेजोन से और प्राइम से हम चीज़ें बाकी की मंगाते हैं ना, लेकिन एक बार बोगस लग गई तो क्या लगता है अपने मन में, कहीं तो आता है कि साला ये बेकार है ऑनलाइन, वो दुकान में जाने का, अच्छी चीज़ देख के लाने की, 5-10 पैसे ज़्यादा लेगा, ये लगता है ना। कहीं तो फंसे, बहुत लेडीज फंसी होंगी ना बहुत से साड़ी वाड़ियों में। देखो, ये इनसे ही सीखने का कि कल मेडिसिन में भी यही होने वाला है। वो एक एक ग्राहक का विश्वास जब टूटेगा, उसके बाद ही ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जाओ। अभी मेरे को जरा टाइम लिमिट का इन्होंने नोटिस दे दिया, पर्चा थोड़ा, अभी मैं थोड़ा शॉर्ट लेता हूँ क्योंकि 3-4 लेक्चर है। चलो, अभी एक थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट और बताना चाहूँगा मैं। एक ADR करके, एडवर्स ड्रग रिएक्शन करके एक बहुत, यह फार्माकोविजिलेंस वीक चल रहा था, उसमें सब करना था। अभी ADR की व्याप्ति बोले तो जब भी कोई रिएक्शन एक आधे पेशेंट को आ जाता है तो उसका पता नहीं चलता कि किस ड्रग से आया, क्या आया। तो ये हमने सब लेटर भेजे हैं, लेकिन आप सब लोग इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित हो तो ये अपने आप पब्लिसिटी हो जाएंगी और ये लोगों को पता चलेगा कि किसी को भी आ सकती, घर में भी आ सकती, किसी को आ सकती अपने नेबरर्स के पास या अपने रिलेटिव केस में। तो ऐसी रिएक्शन कुछ आती है तो अपने जो डॉक्टर्स है उनको ये बताए, और उनके थ्रू अपने ऑफिस में अगर कोई आता है कंप्लेंट, या फिर IPC का एक साइट है उस पर भी दिया है कि आपने क्या करना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में हम एक्शन कर पाएंगे, वो सैंपल थोड़ा निकाल के उसको रोक के, ताकि किसी की हानि ना हो आगे। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको बता देता हूँ, वार्निंग है। तो मैं चाहूँगा कि आपको सभी को मैं आज के जागतिक फार्मासिस्ट दिन की शुभेच्छा देता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। खुद अथॉरिटी होते हुए भी अपने फार्मेसी फेलो का कहा मानना, ये एक सच्चा फार्मासिस्ट ही कर सकता है। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात हमको आज यहाँ बताई, वी आर नॉट फार्मासिस्ट बाय चांस, वी आर फार्मासिस्ट बाय चॉइस। थैंक यू सर, थैंक यू। आने वाले जो 100 मिनट है वो आपकी जिंदगी के शायद बहुत निर्णायक समय होगा। तो आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि आपका जो सच्चा मित्र है आपकी पॉकेट में, दूरध्वनि भ्रमण मंत्र, उसको थोड़ा शांत रखिएगा और आगे का जो प्रोग्राम है उसको बहुत शांति से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही यहाँ पे हमने आयोजन किया है और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। I recognize the presence of Shehnaz Tazi ma'am. दोस्तों, इस वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का जो प्रोग्राम है, इसमें जो सक्सेस हुआ है उसका योगदान हमारे पूरे ऑफिस बेरर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स की जो शानदार वर्किंग है, जिसके कारण इतने रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, मैं उनको देता हूं। और अब मैं फ्लोर हमारे फैकल्टी,
अब मैं फ्लोर हमारे फैकल्टी फर्स्ट फैकल्टी श्री मोहन काले जी को मंच सौंपता हूँ। सर आप लोग बैठिए, सर आप बैठिए, दिलीप भाई आप बैठे रहिए। और यह प्रोग्राम शुरू करने के पहले ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आज ये कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ है, इतना सुंदर कार्यक्रम है कि हमें आज के फार्मासिस्ट जागतिक फार्मासिस्ट डे के दिन हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी से शुभकामनाएं प्रेषित हुई है, जिसे हम आपको उन्होंने वो यहाँ पर किसी कारणवश नहीं आ पाए तो उन्होंने हमें शुभकामनाएं भेजी है जो हम आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं। नमस्कार। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि नागपुर जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन 25 सितंबर 2022 को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मना रहा है। सभी फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से कोविड के कार्यकाल में आप लोगों ने समाज की सेवा करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है। मानव सेवा के लिए समर्पित आपकी सेवा के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और इस वर्ष में फार्मासिस्ट दिवस की थीम को एक स्वस्थ दुनिया के लिए एकजुट तथा कार्यरत फार्मेसी यह है। मैं इसकी सराहना भी करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी फार्मासिस्ट बिरादरी इस संकल्पना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करेगी। एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में, वैसे दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है, पर दवाइयों की कीमतें बहुत ज़्यादा है। हमारी जेनेरिक मेडिसिन जो है उसके बारे में भी बड़े प्रमाण पर संशोधन हो रहा है। गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा आपसे अनुरोध है कि जेनेरिक मेडिसिन भी आप उसका उपयोग करके गरीबों को अगर देने के लिए योजना बनाएंगे तो वो भी गरीबों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा एहसान होगा। सामाजिक दायित्व के भाव से ये भी बात आप जरूर सोचिए। इसी शब्दों के साथ मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आप सबके बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं माननीय श्री नितिन जी गडकरी का, तथा ये क्लिप हमारे लिए जो विशेष रूप से जिन्होंने अरेंज करवाई है असिस्टेंट कमिश्नर एफडीए श्री अतुल मंडलिकर सर ने, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी कोशिशों के कारण ये वीडियो क्लिप हमारे पास उपलब्ध हो पाई। और अब मैं ये फ्लोर जो है वो हमारे फैकल्टी श्री मोहन काले जी को सौंपता हूं।